Hi guys, this is Ashutosh Nema and I am a class 12th PCB student. So I would be teaching you chemistry as well as biology for class 9th as well as for class 10th, and I would be uploading certain tips and tricks related to physics numericals. So at present I don't have a whiteboard, so I would be teaching you through my personal notes. So let's get started. Okay guys, so here we begin our chemistry first chapter, matter in our surrounding of class 9th. So the very first question which might be coming in your mind, that what is matter? As the chapter name is matter in our surrounding, so what is this particular word matter? So let me make it more clear that here is a small definition of matter. Anything which occupies space and has mass is called a matter. Means simply anything which occupies certain space and has mass is called a matter. For example, this pen. This pen has certain mass of its own, and if I kept in a particular surface, so it occupies certain space, means it's a matter. And we have many matters in our surrounding, means each and everything around us is a matter. Okay, so now we move further and we will see the classification of matter. So basically matter is classified on two bases. First basis is the physical property, and second basis is the chemical properties. Under physical properties we generally see the states of matter, basically solid, liquid and gas, and under chemical property we see element, mixture and compound. So in this chapter we need to deal with the states of matter, means classification of matter on the basis of physical property, namely the solid, liquid and gas, and element, mixture and compounds we would be dealing with second chapter next to this. Okay, so let's move further. Now as we know that matter, so the question is, my question is that what are the thing of which matter is made up of? So the most appropriate answer is particles. Okay, matter is made up of very tiny particles called atoms and molecules. Okay, so atoms and molecules. Now you might be familiar with these terms, atoms and molecule. If not, so I will make you familiar. Atom is a single unit. Okay, atom is a single unit. Example: Na, sodium, K, potassium, etc. And molecule means a combination of two atoms is called a molecule. For example, H2, N2, Cl2 means hydrogen, nitrogen, chlorine, etc. Okay, now if I said that matter is made up of particle, so it might be difficult for some of you to make sure that I am right. Okay, so for the convenience, experiments were performed to identify that matter is actually made up of particles. Okay, so the evidence that matter has particles which are very tiny was given by two things. Okay, so the first thing is the diffusion and second is Brownian motion. Okay, so diffusion is also a topic of this chapter which we will discuss later, but for your convenience I am going to tell it right here. Okay, diffusion is nothing but diffusion is the mixing and spreading out of one substance into another by movement of its particle. Means simply देखा जाए तो किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का स्प्रेड आउट होना और किसी दूसरे सब्सटेंस में जाके मिलना जस्ट बिकॉज ऑफ उसके पार्टिकल की मूवमेंट के कारण, दिस इज नोन एज डिफ्यूजन. ओके, सो डिफ्यूजन वी कैन से डिफ्यूजन की बात की जाए, सो डिफ्यूजन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड. ओके, so we have an example for this. Example is, put a drop of KMnO4, which is also known as potassium permanganate, in a vessel containing water, and after some time one will observe that KMnO4 is spreading in the entire solvent or water. So इसके लिए बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ कि आप एक पर्टिकुलर वेसल लीजिए जिसमें वाटर भराओ और फिर आप उसमें एक ड्रॉप डालिए KMnO4, बोले तो पोटेशियम परमैंगनेट. ओके, तो आप जब उसमें ड्रॉप डालेंगे और उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे आप, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कुछ देर के बाद कि वो जो एक ड्रॉप है ना, वो पर्टिकुलर एरिया से हटकर पर्टिकुलर एरिया में थी पहले वो, और पर्टिकुलर एरिया कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि वो पूरे एंटायर सॉल्वेंट या फिर वाटर में मिक्स हो गई है. तो इससे अपन को ये पता चलता है कि वाटर मींस पोटेशियम परमैंगनेट के भी कुछ पार्टिकल्स थे जो कि वाटर में स्प्रेड हो गए डिफ्यूजन के कारण. ओके, this was the example of diffusion of solids and liquid. Okay, now talking about diffusion of gas and gas. Okay, so गैस और गैस का भी डिफ्यूजन होता है. इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप दो टेस्ट ट्यूब लीजिए, एक में एक को खाली रहने दीजिए, दूसरे में ब्रोमाइन वेपर्स ले लीजिए जिनका कलर रेड ब्राउन होता है, और आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि जो खाली वाली टेस्ट ट्यूब थी ना, उसमें भी रेड ब्राउन कलर के वेपर्स यानी कि ब्रोमाइन गैस आ जाती है. ओके, अब बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो ब्रोमाइन गैस हमने इसलिए ली थी ताकि
ताकि हमें पता चल सके कि एक्चुअली डिफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि ब्रोमाइन गैस का एक स्पेसिफिक कलर होता है. ओके, नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द एविडेंस इज द ब्राउनिंग मोशन. ब्राउनिंग मोशन इज नथिंग बट द zigzag मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज नोन एज ब्राउनिंग मोशन. ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया गया था विद द हेल्प ऑफ अ पोलन ग्रेन. एंड जब इस पोलन ग्रेन को एक पर्टिकुलर लिक्विड में डाला गया, या फिर एक पर्टिकुलर वी कैन से दैट पर्टिकुलर लिक्विड में डाल दो आप, या फिर फ्री स्पेस में रख दो, और जब इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया गया तो उसको तो पता चला कि पोलन ग्रेन है ना zigzag मूवमेंट कर रहा था, मीन्स ये मूव कर रहा था. तो इसके कारण हमें पता चला कि ये जो पोलन ग्रेन मूव कर रहा था, ये पोलन ग्रेन का मूवमेंट नहीं था, ये था पार्टिकल्स का मूवमेंट. द पार्टिकल्स विच वर एक्चुअली मूविंग कंटिन्यूसली वर हिटिंग द पोलन ग्रेन्स, मेकिंग द पोलन ग्रेन टू परफॉर्म द ब्राउनिंग मोशन. ओके, क्लियर. नाउ कंक्लूजन इससे ये आया कि द मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग. ओके, now coming on to the characteristics of particles of matter. Okay, so first characteristics that they are very very small. Second, that they are continuously moving in random motion. Third, they have space between them. Okay, and fourth, they attract each other. So basically देखा जाए ना तो रिफ्रेशर्स में आप इन पूरे पॉइंट्स को भी एलेबोरेट फॉर्म में देखोगे, तो मैं आपको यहीं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. ओके, तो देखो, जैसे आप देखा जाए तो पार्टिकल दे आर वेरी वेरी स्मॉल. इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता तो आप ऑब्वियसली लगा सकते हो कि पार्टिकल्स नेकेड आइज से नहीं दिखते. वी हैव टू यूज माइक्रोस्कोप, ओके, ऑफ हाई मैग्निफिकेशन. सो इससे यह कंक्लूड हो जाता है कि दे आर वेरी वेरी स्मॉल. अब देखो, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन. इसका एग्जाम्पल आपको कैसे मिलेगा? इसका एग्जाम्पल आपको ऐसे मिलता है कि आपने बेसिकली देख ही लिया है कि पोलन ग्रेन वाला एग्जांपल देख ही लिया, और आप ये भी देख सकते हो कि दे आर कंटिन्यूसली मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन. तो आप जैसे किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाते हो, आप कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाते हो तो उसमें सॉल्वेंट रहता है और एक सॉल्यूट रहता है. तो आप जब भी किसी सॉल्यूट को डालते हो, सॉल्यूट को आप स्टर करोगे या फिर सॉल्यूशन को एज इट इज़ भी रखा रहने दोगे, तो आप देखोगे कि सॉल्यूशन जैसे जैसे उसमें मिक्स हो जाता है. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि पार्टिकल्स है ना, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन. ओके, और दे हैव स्पेस बिटवीन देम. दे हैव स्पेस बिटवीन देम का एविडेंस सिंपल आपको मिल जाता है कि जब भी आप एक शुगर सॉल्यूशन बनाते हो ना, तो वो शुगर डिजोल्व होकर जाता कहाँ है? उसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर पार्टिकल्स होते हैं, उनमें स्पेस रहता है, जिस स्पेस के बीच में शुगर के मॉलिक्यूल्स जाके घुल जाते हैं, इसलिए अपन को लगता है कि शुगर उसमें घुल गई है. ओके, अब दे अट्रैक्ट ईच अदर. दे अट्रैक्ट ईच अदर का बेस्ट एग्जांपल ये है कि दे अट्रैक्ट ईच अदर का एग्जांपल आप वाटर को ही देख सकते हो. सो द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एक्चुअली अट्रैक्ट ईच अदर. यही एक रीज़न है कि उसमें थोड़ा बहुत फोर्स होता है अट्रैक्शन का, भले ही वो लो होता है, तो वी गेट वाटर इन लिक्विड फॉर्म. ओके, अब यहाँ पे दो टर्म आती हैं, एक आता है रिजिड और एक आता है फ्लूइड. ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स. रिजिड मीन्स अनबेंडिंग एंड अनफ्लेक्सिबल एंड हार्ड. ओके, मतलब जो चीज़ फ्लेक्सिबल नहीं है, जो चीज़ बेंड नहीं हो सकती आसानी से और काफ़ी हार्ड है, उसको अपन रिजिड बोलेंगे. मीन्स इट्स अ रिजिड बॉडी. ओके, द बेस्ट एग्जाम्पल इज सॉलिड्स. ऑल द सॉलिड्स आर रिजिड. फ्लूइड मीन्स अ मटेरियल विच कैन फ्लो इजिली, गैसेज एंड लिक्विड्स. फ्लूइड मतलब कोई भी मटेरियल जो आसानी से फ्लो कर सके किसी भी वेसल या किसी भी पर्टिकुलर एरिया में. इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं गैसेज और लिक्विड्स. ओके, नाउ बेसिकली द कम्स द टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर. ओके, सो यू माइट बी फैमिलियर विद द स्टेट्स ऑफ मैटर. आप बचपन से सुनते आए हो कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. एक्चुअली देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर. सो 2 स्टेट्स के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो पहले हम बेसिकली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ लेते हैं. पहली स्टेट है सॉलिड, दूसरी स्टेट है लिक्विड, तीसरी स्टेट है गैस. ओके, तो अब इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज दे माइट डायरेक्टली बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. तो टॉकिंग अबाउट सॉलिड फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. ओके, मीन्स शेप भी फिक्स्ड है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड है. वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम का बेसिकली मतलब देखा जाए ना तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी. ओके, यू विल बी लर्निंग फर्दर, बट अब इतना जान लेना ज़रूरी है कि फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम ज़रूरी होता है. ठीक है, सॉलिड्स का कंप्रेस नहीं हो सकते. सॉलिड मीन्स आप उन पे दबाव डालोगे तो दे कैन नॉट बी कंप्रेस. फॉर एग्जाम्पल, यू टेक एनी ऑफ द सॉलिड बॉडी, सपोज दैट यू टेक दिस पेन. अब इस पेन को मैं कंप्रेस करने जाऊँ तो आसानी से कंप्रेस नहीं होगा. हाई डेंसिटी, उनकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है. ओके, डेंसिटी मीन्स द ओवरऑल कंटेंट इन दैम. ओके, डू नॉट फुल ऑफ द कंटेनर. ओके, मतलब आप किसी भी कंटेनर में सॉलिड को डालते हो तो सॉलिड जो है ना, यदि कंटेनर का साइज़ बड़ा हुआ,
सॉलिड से या फिर किसी भी कंटेनर में आप किसी भी सॉलिड बॉडी को डालोगे तो थोड़ा बहुत पार्ट बच जाता है जो कि सॉलिड कवर नहीं कर पाता उस कंटेनर में, ठीक है। और डू नॉट फ्लो नहीं करते। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सॉलिड्स रिजिड होते हैं तो वो फ्लो नहीं कर सकते, ठीक है। लिक्विड की बात की जाए तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है बट फिक्स्ड शेप नहीं होता, कंप्रेस नहीं हो सकते, ये मॉडरेट डेंसिटी होती है, कंटेनर को पूरी तरीके से फिल नहीं करते और काफ़ी इजीली फ्लो करते हैं। गैसेस का देखा जाए तो गैसेस का ना फिक्स शेप होता है और ना फिक्स वॉल्यूम होता है, कंप्रेस हो सकती हैं काफ़ी आसानी से, लो डेंसिटी होती है, कंटेनर को फिल कर सकती हैं पूरा और आसानी से फ्लो कर सकती हैं, ओके। तो अब यदि इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को एलेबोरेट फॉर्म में किया जाए तो ओके, सो आई विल एलेबोरेट दीज ऑल पॉइंट्स फॉर यू। तो देखो, फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम की बात की जाए तो सॉलिड्स में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना, दे आर एक्चुअली हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। मीन्स जितने भी पार्टिकल होंगे वो एक दूसरे से चिपके होंगे, है ना, जिसके कारण उसका शेप भी फिक्स्ड हो जाता है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड हो जाता है, ठीक है। अब दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड वो बिल्कुल नहीं हो सकते क्योंकि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांगली टाइटली पैक्ड हैं, स्पेस कहीं नहीं है बीच में, तो कंप्रेस होने का तो चांस ही नहीं है। डेंसिटी भी काफ़ी हाई होती है। डेंसिटी हाई इसलिए होती है क्योंकि उसके बीच में बेसिकली रीज़न यही है सॉलिड्स में, एक मेन रीज़न यही होता है कि दे आर हेल्ड टुगेदर, पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और हाई डेंसिटी का रीज़न भी यही है। और दे डू नॉट फॉलो ऑफ द कंटेनर। अब दे डू नॉट फॉलो ऑफ द कंटेनर, इसका भी रीज़न यही है कि दे आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन देम। अब देखो, इससे क्या होता है कि जब वो स्ट्रांगली अट्रैक्टिव फोर्स से दे आर वेरी टाइटली पैक्ड, वो टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स में काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण वो पर्टिकुलर पार्टिकल अपनी जगह से कहीं भी जा नहीं सकता, ओके। वो यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता, वो एक पर्टिकुलर जगह पे है तो वहीं रहेगा, जिसके कारण वो कहीं भी नहीं जा सकता, तो वो कंटेनर को फिल नहीं कर पाएगा। और डू नॉट फ्लो होने का चांस ही नहीं है क्योंकि पार्टिकल्स मूव ही नहीं कर सकते उसके, ठीक है। लिक्विड में आए तो फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप, तो लिक्विड में थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से थोड़ा कम होता है और यही इसके रीज़न है। कैन नॉट बी कंप्रेस, पर कंप्रेस नहीं हो सकता क्योंकि इतना भी कम नहीं रहता है। मॉडरेट डेंसिटी क्योंकि थोड़ी बहुत अट्रैक्शन कम हो जाता है। डू नॉट फिल देयर कंटेनर क्योंकि अट्रैक्शन इतना भी कम नहीं होता कि पार्टिकल इतनी जल्दी कहीं भी जा सके और उस पर्टिकुलर एरिया को फिल कर सके। और फ्लो आराम से हो जाते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाता है जो फ्लो करने के लिए काफ़ी है। अब गैसेस की बात करें तो गैसेस हैव नाइदर फिक्स शेप और नॉट फिक्स वॉल्यूम बिकॉज गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम होता है, तो इनके पार्टिकल्स जनरली मूव करते रहते हैं, ओके। और कैन बी कंप्रेस हो सकते हैं। वेरी लो डेंसिटी क्योंकि पार्टिकल्स यहाँ वहाँ मूव करते रहते हैं तो डेंसिटी पे काफ़ी अच्छा असर पड़ना ही है। फिल द कंटेनर इसलिए कर देते हैं क्योंकि पार्टिकल्स का क्या है ना, काफ़ी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो पार्टिकल्स इधर उधर घूमते रहते हैं, तो वो पर्टिकुलर एरिया को फिल करते रहते हैं, तो एक तरह से फिल द कंटेनर मतलब वो पूरी तरह से फिल कर देता है कंटेनर को। फ्लो ईजिली उनको करना ही है बिकॉज द पार्टिकल्स आर वेरी 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 लूजली हेल्ड बाय लो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ओके। नाउ एक और टर्म आती है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जो कि अपन इससे डील करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी, ओके। कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो वो किस एनर्जी से मूव कर रही है, उसमें जो एनर्जी होती है जो पोजेस करती है वो एनर्जी इन मूविंग कंडीशन, इट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, ओके। नाउ इफ वी सी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, तो गैस में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में मॉडरेट और सॉलिड्स में सबसे कम। दिस इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें सबसे लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता, पार्टिकल्स अच्छी खासी मूव कर सकते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। इसमें थोड़ा मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता, पार्टिकल्स उतने अच्छे से मूव नहीं कर पाते, और इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता, पार्टिकल्स अपनी जगह से हिल ही नहीं पाते, ओके। और एक और देखा जाए तो एक और पॉइंट है स्टार पॉइंट, गैसेज हैव द हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी, ओके। तो जैसा कि मैंने बताया कि गैसेज अच्छी खासी तरीके से कंप्रेस हो सकती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आप घरों में देखते हो, एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी सिलेंडर में एक्चुअली होती है ब्यूटेन, ओके, C4H10। आप आगे पढ़ोगे पर आपके नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि उसमें ब्यूटेन होती है, तो उसको जो है ना कंप्रेस करके उस पर्टिकुलर सिलेंडर में भरा जाता है, कंप्रेस करके, ठीक है। चलो भाई, डिफ्यूजन आ गया अपना टॉपिक। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको डिफ्यूजन, एक बार फिर बता देता हूँ। द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर बाय मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल, ओके। मतलब किसी भी सब्सटेंस का स्प्रेड आउट होना और मिक्स होना किसी दूसरे सब्सटेंस में बाय द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। चलो, अब डिफ्यूजन रेट की बात आ जाती है, मतलब डिफ्यूजन कितना तेज हो रहा है, ठीक है। और किस में कितना तेज हो रहा है, तो ये देखो, सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन होता है गैस में, उससे कम लिक्विड में, और उससे सबसे कम सॉलिड में। अब इसका भी एक पर्टिकुलर रीज़न है, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मेन ही रीज़न है सबके लिए।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। गैसेस में सबसे कम है, पार्टिकल्स अच्छे खासे तरीके से बहुत ईजिली मूव कर जाएंगे। लिक्विड में थोड़ा बीच का है, मीन्स मॉडरेट है, तो पार्टिकल्स उतने अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे। और सॉलिड में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, पार्टिकल्स मूव ही नहीं कर पा रहे, तो डिफ्यूजन होता है लिक्विड्स में, बहुत स्लो होता है लेकिन, और इतना स्लो होता है कि लोगों को लगता है कि इसमें डिफ्यूजन हो ही नहीं रहा, बट इन सॉलिड्स डिफ्यूजन एक्चुअली हैपन्स। ओके नाउ ठीक है, तो लेट अस सी डिफ्यूजन इन गैसेस। ठीक है, इन गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड तीनों में देखेंगे अपन। तो इसके कुछ बेस्ट एग्जांपल हैं, दैट स्मेल ऑफ कुकिंग फूड। आपने देखा होगा कि जब भी आपकी मम्मी अच्छा बढ़िया बढ़िया खाना बनाती हैं तो उसकी स्मेल आपके पास बहुत जल्दी आ जाती है ना। ठंडे खाने की नहीं आती, ठंडे खाने की इसलिए नहीं आती क्योंकि ठंडा खाना, इट डिपेंड्स, अब ये जो कंडीशन है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। पहली बात तो यह है कि जब खाना बिल्कुल गर्म गर्म रहता है तभी उसमें से स्मेल आती है अच्छी खासी, और वो अपने कानों तक, वो अपने, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार मैं, वो अपने नाक तक पहुँच जाती है। ठीक है, और अपन को अच्छी खासी स्मेल आती तो अपन को पता चल जाता है। ये क्यों होता है? ये बेसिकली एग्जांपल है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है, मतलब गैस के पर्टिकुलर मॉलिक्यूल एटमॉस्फेरिक गैस के मॉलिक्यूल में डिफ्यूज होकर अपने नाक तक आ रहे हैं। ठीक है, और दूसरा बात ये भी है कि जो वार्म एयर होती है ना, जो गर्म हवा, गर्म जो रहती है ना, वो थोड़ी हल्की रहती है। तो अब स्मेल ऑफ कुकिंग फूड, वॉट एवर माइट बी रीजन, पर रीज़न यही है कि ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का एग्जाम्पल है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम जब अपन लगाते हैं तो उसकी स्मेल भी अपन तक आ जाती है, वो भी डिफ्यूजन के कारण आती है। स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक बोले तो अगरबत्ती, जब भी अपन अगरबत्ती लगाते हैं तो अगरबत्ती कहाँ लगती है और अपन काफ़ी दूर से भी उसकी फ्रेग्रेंस को महसूस कर सकते हैं। ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन गैस। ठीक है, इन द एटमॉस्फेरिक गैस। अब लिक्विड पे आ जाते हैं, तो डिफ्यूजन इन लिक्विड, स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर। ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल है डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, आप कभी भी देखना, एक पर्टिकुलर वेसल लेना, उसमें एक ड्रॉप डाल देना इंक का, तो इंक का ड्रॉप जो है ना उस पर्टिकुलर वाटर वेसल में वो फैलने लगेगा। तो ये बेस्ट एग्जांपल है किसका? डिफ्यूजन इन लिक्विड ओके। अब डिफ्यूजन इन सॉलिड एंड सॉलिड, इट इज़ वेरी स्लो बट इट हैपन्स। ठीक है, इसका कोई पर्टिकुलर एग्जांपल मायने नहीं रखता, बट फॉर योर नॉलेज डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड और सॉलिड का बेस्ट एग्जांपल है, आप किसी भी मेटल को काफ़ी देर तक दोनों को पास पास रखोगे तो आप काफ़ी टाइम बाद देखोगे कि एक पर्टिकुलर मेटल के ट्रेसेस दूसरे पर्टिकुलर मेटल पे आ गए हैं। तो ये एग्जांपल है कि सॉलिड और सॉलिड में भी डिफ्यूजन होती है, बट बहुत स्लो होता है। तो स्लो होने के कारण कुछ लोग समझते हैं कि वो होता ही नहीं है, बट होता है लेकिन बहुत स्लो होता है। ठीक है, अब जैसा कि आप लोग ये देख रहे हो, स्टार पॉइंट में मैंने मार्क किया है सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ये तीनों स्टेट है ना, ये अब आपस में इंटरचेंजेबल है। ठीक है, बस अपन को कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सॉलिड को ज़्यादा हीट करोगे लिक्विड में हो जाएगी, लिक्विड को ज़्यादा हीट करोगे गैशियस में हो जाएगी। अब यहाँ से चालू करेंगे, गैशियस को कूल करोगे तो वो लिक्विड में आ जाएगा, और लिक्विड को भी कूल करोगे तो सॉलिड में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और टॉपिक आता है कि चेंजिंग इन स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, सो चेंजिंग इन स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, आप अपन मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बट ठीक है, इसके दो वेज हैं, या तो आप टेम्परेचर चेंज कर दीजिए या फिर प्रेशर चेंज कर दीजिए। ठीक है, अब टेम्परेचर यदि चेंज करते हैं तो उसमें भी 4 प्रोसेस आती हैं। पहली आती है मेल्टिंग। मेल्टिंग जैसे कि अपन को पता है, मेल्टिंग होती है सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड। ठीक है, मेल्ट, पिघलना। ठीक है, बॉइलिंग होता है लिक्विड टू गैस, कंडेंसेशन गैस टू लिक्विड, फ्रीजिंग लिक्विड टू सॉलिड। अब एक एक करके मतलब समझाता हूँ। मेल्टिंग मतलब पिघलना। ठीक है, मेल्टिंग होता है जब आप हाई टेम्परेचर करोगे तो सॉलिड जो है ना वो लिक्विड में हो जाएगा डायरेक्ट। बॉइलिंग मतलब लिक्विड गैशियस में हो जाएगा। आप देखते हो, आप जब पानी को गर्म करोगे तो आप पानी के ऊपर जब कोई उसको कवर कर दोगे तो आप जब थोड़ी देर बाद देखोगे ना तो उस कवरिंग पे पर्टिकुलर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी। वो ड्रॉपलेट्स कुछ नहीं है, वो उसकी वेपर्स थी। ठीक है, यदि आप खुला छोड़ते तो वो वेपर्स एटमॉस्फेयर में जाती। तो ये बेस्ट एग्जांपल है बॉइलिंग का। कंडेंसेशन का बेस्ट एग्जांपल है, आप उन वेपर्स को थोड़ी देर छोड़ोगे ना तो वे वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, कंडेंसेशन। फ्रीजिंग का बेस्ट एग्जांपल आइस है ना, फ्रीजिंग ऑफ आइस। आप वाटर को ज़्यादा हाई टेम्परेचर, सॉरी बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब लिक्विड से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, आइस सॉलिड होती है। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्परेचर के टर्म में एक और टॉपिक आता है जो कि है लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट का सिंपल डेफिनेशन है द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। मतलब कोई भी हीट एनर्जी जो कि अपन को चाहिए है एक स्टेट ऑफ मैटर को कन्वर्ट करने के लिए दूसरी स्टेट ऑफ मैटर में, उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट 2 प्रकार की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या करती है, सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट करती है, और वेपोराइजेशन लिक्विड टू गैस में।
ठीक है। अब इसका बेसिक डेफिनेशन मैं मतलब नहीं बताऊंगा, ये आपको रिफ्रेशर्स में मिल जाएगी, वो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। यदि आपको मतलब इफ़ यू वांट टू टेल मी द डेफिनेशन तो मैं डेफिनेशन भी बता सकता हूँ। सी, latent heat of fusion is nothing but the amount of heat required in joules to convert 1 gram of solid into 1 gram of liquid, or you can say 1 gram of liquid, ठीक है, is known as latent heat of fusion। और उसी का वाइस वर्स, उसी का बिल्कुल सेम टू सेम वेपोराइजेशन है, बस वहाँ पे क्या आ जाएगा कि 1 लीटर ऑफ लिक्विड टू गैस, ओके। Means latent heat of vaporization is nothing but the amount of energy which is required in joule to convert 1 liter of liquid into gas, okay। So यहाँ पे एक और टॉपिक आता है जो कि सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि यदि अपन हीट प्रोवाइड करेंगे तो एक सॉलिड डायरेक्ट जाके गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यदि अपन उसी गैस को कूल करेंगे तो वो डायरेक्ट जाके सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन एंड नेफ्थलीन बॉल्स, या फिर नेफ्थलीन, मतलब इन पर्टिकुलर ये जो है ना इनको सबलाइन बोलते हैं, ठीक है, सबलाइन, ओके, दे आर सबलाइन। मीन्स इनको यदि आप हीट देते हो तो ये डायरेक्ट गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यदि इन्हीं के गैशियस फॉर्म को आप कूल करते हो तो ये दे विल एक्चुअली कन्वर्ट इनटू देयर सॉलिड फॉर्म, ओके। एंड this might not be our last topic, but it's also an important topic. I think it is a second last topic, okay। Evaporation means the process of changing of a liquid into vapor even below its boiling point is called evaporation, ठीक है भाई। देखो भाई, evaporation का सिंपल मतलब होता है भाप बनकर उड़ जाना, ठीक है। मतलब कोई भी लिक्विड में आप कोई भी लिक्विड स्टेट का कोई भी लिक्विड ले रहे हो आप, ठीक है, तो यदि उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, बेसिकली 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है, तो अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे तक के टेम्परेचर पे वो उड़ के भाप बन जाता है ना, तो उस प्रोसेस को अपन इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। और यदि वो अपने पॉइंट पे आकर हो रहा है तो उसे अपन बॉइलिंग बोलेंगे। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे का पॉइंट जो, मतलब सपोज करो एक वाटर है, ठीक है, वाटर है, ओके, वाटर लिया अपन ने, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको भी पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है और 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो अब देखा जाए तो जब जो है ना लिक्विड जो है ना, जब लिक्विड अपनी बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे भी मतलब भाप बनकर उड़ना चालू हो जाता है, उस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, मतलब इवेपोरेशन पे डिपेंड करता है, ओके। काफ़ी ज़्यादा हवा है, पंखा चालू किया है ना मैंने, चलो ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, सबसे पहला फैक्टर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर और इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन। आप खुद सोचो ना, जितना ज़्यादा आप हीट प्रोवाइड करोगे उतना ज़्यादा पानी गर्म होगा और भाप बनकर उड़ना चाहेगा, है ना। दूसरा आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया भी इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा इवेपोरेशन, ठीक है। आप ये ट्राई करके देख सकते हो, आप एक कप में और एक ट्रे में पानी भर के धूप में रख देना, तो ट्रे में ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा और कप में नहीं हो पाएगा, क्योंकि ट्रे का सरफेस एरिया ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी मतलब द मॉइस्चर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ह्यूमिडिटी जितनी कम है इवेपोरेशन उतना ज़्यादा है, और ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा है इवेपोरेशन उतना कम है। विंड स्पीड मीन्स, विंड मीन्स मूविंग एयर, विंड स्पीड मूविंग एयर, द स्पीड ऑफ मूविंग एयर इज नोन एज विंड स्पीड। विंड स्पीड जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के, ओके। तो जितनी ज़्यादा विंड स्पीड उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक टॉपिक अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, जो कि है बेसिक यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको 2 यूनिट पढ़नी है टेम्परेचर की, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक यूनिट है केल्विन, सॉरी, एक यूनिट है केल्विन, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय के, और एक यूनिट है सेल्सियस रिप्रेजेंटेड बाय सी, ठीक है। तो इन दोनों, तो ये दोनों भी है ना, ये दोनों भी अपने आप में इंटरचेंजेबल है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है कि यदि सपोज आपको केल्विन में चाहिए है टेम्परेचर, तो सेल्सियस में आप 273 से ऐड कर दीजिए, और सेल्सियस में करना है आपको तो केल्विन में से 273 माइनस कर दीजिए, ओके। इस पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने काफ़ी ज़रूरी हैं, ठीक है। मैं इन पे स्टार मार्क कर देता हूँ, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूले, ओके। और अब एक और चीज़, कुछ फिनोमिनाज हैं इवेपोरेशन को लेके, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो देखिए,
ओके, तो पहला फिनोमेना आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई स्पिरिट वगैरह, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट स्पिरिट जो कि अपन मोच वोच आ जाए तो उसमें लगाते हैं, तो जब भी आपने कभी ओके सॉरी गाइज, वो थोड़ा इंटरप्शन आ गया था. सो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट सर्टेन फिनोमिनाज विच वर एक्चुअली बेस्ड ऑन लेटेंट हीट एंड एवापोरेशन. तो कुछ फिनोमिनाज हैं आपके कोर्सेज में जो कि बेस्ड हैं लेटेंट हीट और एवापोरेशन पे. तो पहले फिनोमिना की बात करते हैं. बेसिकली आपने पहला फिनोमिना देखा होगा कि बेसिकली आप जब भी कोई स्पिरिट वगैरह रहता है, स्पिरिट से मेरा मतलब वो नहीं है, स्पिरिट मीन्स मेरा मतलब वो आत्मा एंड ऑल नहीं है. स्पिरिट का मतलब होता है मीन्स कोई भी मोच वोच आ जाती है तो आप स्पिरिट वगैरह, या फिर यू कैन ऑब्जर्व दैट, है ना. तो आप जब भी किसी हाथ में, आप जब भी आपके हाथ में लेके हाथों को रब करते हो तो वो तुरंत वैनिश हो जाए. सैनिटाइजर का एग्जांपल ले सकते हो आप बेस्ट, ठीक है. तो वो वैनिश हो जाता है और आपको हाथों पे काफ़ी एक ठंडा सा महसूस होता है, ठीक है. तो बेसिकली इसका मेन रीज़न है लेटेंट हीट. क्या होता है कि जब आप उसको रब करते हो ना, तो वो अपने हाथों से लेटेंट हीट और वेपोराइजेशन को एब्जॉर्ब करके वेपर बन के उड़ जाता है और अपने हाथ को एक कोल्ड सेंसेशन मिलता है, ठीक है. ये पहला फिनोमेना हो गया. दूसरा फिनोमेना है कि अपन ने देखा है कि गर्मी में पानी जो है वो अर्दन पॉट्स, बेसिकली मटका जो बोला जाता है अपने यहाँ, तो मटके में अपन स्टोर करके रखते हैं और मटके में स्टोर करने से वो पानी काफ़ी ठंडा हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न भी ये है कि जो मटका रहता है ना, उसमें काफ़ी छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, काफ़ी छोटे छोटे, यू कैन से पोर्स मीन्स छेद रहते हैं काफ़ी छोटे छोटे, जिनसे कंटिन्यूसली थोड़े थोड़े अमाउंट में वाटर बाहर आता रहता है, ठीक है. और वो वाटर क्या करता है, वो एटमॉस्फेरिक हीट को एब्जॉर्ब करके लेटेंट हीट और वेपोराइजेशन के थ्रू एवापोरेट हो जाता है और जितने भी बचे ड्रॉपलेट्स हैं ना, वो एनर्जी लूज कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट और वेपोराइजेशन, और वो काफ़ी कूल हो जाते हैं, जिसके कारण अंदर का वाटर भी कूल रहता है, पूरा अर्दन पॉट भी कूल रहता है, ठीक है. ये दूसरा हो गया. और तीसरा फिनोमेना है स्वेटिंग, ठीक है. स्वेटिंग, तो आपने देखा होगा कि गर्मी में काफ़ी पसीना आता है और पसीना आते वक्त जब भी हवा चलती है तो आपको काफ़ी एक कूल सेंसेशन होता है, कोल्ड सेंसेशन होता है, काफ़ी ठंडा लगता है. इसका भी रीज़न लेटेंट हीट ही है. क्या होता है कि जब गर्मी के टाइम पे जब अपनी बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है तो जो अपने ग्लैंड्स होते हैं ना, वो मॉइस्चर सिक्रीट करना चालू कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, ओके. तो वो स्वेट क्या करता है, अपनी बॉडी का ही टेम्परेचर से वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लेके वो एवेपोरेट हो जाता है और उस एवेपोरेशन के कारण अपन को वो कूलिंग सेंसेशन देखने को, महसूस करने को मिलता है, ओके. नाउ टॉकिंग अबाउट द फोर्थ फिनोमेना. सो एज यू हैव सीन दैट अपन समर्स में कॉटन क्लोथ पहनते हैं और कॉटन क्लोथ पहनना ही प्रेफर किया जाता है. ऐसा क्यों? इसका रीज़न है कि कॉटन क्लोथ क्या करते हैं कि जैसे स्वेट आता है ना गर्मी में, तो वो स्वेट को एब्जॉर्ब करके उस स्वेट को एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, और अपन अपनी बॉडी को कूल रखते हैं, ठीक है. और फिफ्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है ये, आपने देखा होगा कि डेजर्ट कूलर रहता है, ओके. वो जनरली ड्राई डे में काफ़ी अच्छी कूलिंग देता है, ठीक है. तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ड्राई डे में क्या होता है, टेम्परेचर अच्छा खासा है तो एवेपोरेशन भी अच्छी खासी होगी, ठीक है. एवेपोरेशन अच्छी खासी होगी मतलब जो वाटर है वो लेटेंट हीट और फ्यूजन के द्वारा वेपर बन रहा है, ठीक है, और एवेपोरेट हो रहा है. पहला रीज़न ये हो गया. दूसरा रीज़न ये है कि एयर ड्राई है, उसके कारण भी एवेपोरेशन अच्छा खासा हो रहा है. यही दो रीज़न है ऐसे जिसके कारण पानी एवेपोरेट होके एक कूलिंग इफेक्ट देता है. और जो डेजर्ट कूलर है ना, वो ड्राई डे पे काफ़ी अच्छा वर्क करता है और काफ़ी अच्छी कूलिंग देता है. मैं एक बात आपको बता दूं कि जो एवेपोरेशन है ना, वो जाते जाते एक कूलिंग इफेक्ट देके जाता है हमेशा, ओके. सो बेसिकली अपना चैप्टर ख़त्म हो चुका है. और हाँ, एक लास्ट टॉपिक रह जाता है. मैंने आपको शुरू में बताया था कि देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर. तो जो 2 अलग स्टेट ऑफ मैटर है ना, वो उनमें से चौथी स्टेट है प्लाज्मा और 5वीं स्टेट है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ओके. बेसिकली आपको मतलब ज़्यादा पढ़ाया तो नहीं जाएगा, पर आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि प्लाज्मा जो होता है ना, इट इज़ एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स, ओके. यू विल स्टडी दिस इन फर्दर चैप्टर्स, बट बेसिकली आपको यहाँ ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता, पर आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया. सो गाइज, द चैप्टर इज़ ओवर, ओके. सो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट कर देना, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन एट द अर्लीस्ट. थैंक यू.